Yes, good morning to all of you. Let me now go ahead with our discussion on the topic of treatment of goodwill. Last question is pending. No talking now. जिनका टिफिन खाने का टिफिन खा लो, जिनका टिफिन खा के हो गया है पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आपस में बातें बंद करो. सेकंड लास्ट बेंच आपस में मतलब दोस्त के साथ बात करना बंद करो. चलो, लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग अस? Wise, clever, and dull were trading in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st December every year. The partnership provided inter alia मतलब along with other things. Inter alia शब्दाचा अर्थ काय? Along with other things. Okay. The partnership provided inter alia that on the death of the partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the 3 years up to the date of death, after deducting interest at the rate of 8% on capital employed and a fair remuneration of each partner. The profits are assumed to be earned evenly throughout the year. On 30th June 2016, Wise died, and it was agreed that, on his death, to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet. So goodwill should be adjusted through capital. Next, it was agreed for the purpose of valuation of goodwill that the fair remuneration for work done by each partner would be rupees 15,000 per annum, and that the capital employed would be rupees 1,56,000. Clever and dull were to continue in the partnership, sharing profits and losses equally after the death of Wise. Following were the amounts of profits of earlier years before charging interest on capital employed. 2013, 67,200. 2014, 75,600. 2015, 72,000. And 2016, 62,400. You are required to compute the value of goodwill and show the adjustments thereof in the books of the firm. The problem is talking about goodwill not at the time of admission, not at the time of retirement, not at the time of change in PSR, but it is talking about goodwill at the time of death of a partner. The goodwill valuation is to be considered on the basis of 3 years purchase. On the basis of 3 years purchase. 3 years purchase of what? Average profits. Average profits of what? Of past 3 years. Up to the date of death of the partner, after deducting interest at the rate of 8% on capital employed and a fair remuneration of each part. तर त्या प्रॉफिट मधून पहिल्यांदा काय वजा करा? प्रॉफिट मधून पहिल्यांदा इंटरेस्ट इन कॅपिटल वजा करा आणि काय वजा करा? रेम्युनरेशन टू पार्टनर वजा करा. इंटरेस्ट इन कॅपिटल किती आहे? 8% आहे आणि रेम्युनरेशन टू पार्टनर किती आपल्याला चेक करायचं आहे. ते त्यावेळेला ते ठरवतील किती असणार त्याचं रेम्युनरेशन म्हणून. नेक्स्ट पार्ट, द प्रॉफिट्स आर अज्युम टू बी अर्न इव्हनली थ्रू आउट द इयर. म्हणजे you'll have to be very careful about this sentence. Hey, sentence actually tricky sentence आहे. It is telling you something special is going to happen in the problem. गुडविलच्या व्हॅल्युएशनच्या प्रॉब्लेम मध्ये असं कधी आपल्याला दिलेलं नसतं. त्याची काही गरज पण पडत नाही, कारण जनरली गुडविल आपण कधी कन्सिडर करतो? ऍडमिशन किंवा रिटायरमेंटच्या वेळेला कन्सिडर करतो किंवा चेंज इन पीएसआरच्या वेळेला कन्सिडर करतो. ऍडमिशन इज नॉट अ नॅचरल फिनोमेना, ऍडमिशन इज एन एग्रीड फिनोमेना. समझते मैं क्या बोल रहे थे? ऑल ऑफ ए सडन एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होता. हम लोग एग्रीमेंट करते, कभी आएगा कभी नहीं आएगा हो रहा है. Same is the case with retirement. Retirement is planned on which day he is going to retire. Same is the case with change in PSR. कि PSR कब से चेंज होगा? Generally ये सब चीजें planned होता है, लेकिन death is unplanned. At any point of time death can happen. It's a natural phenomenon. It's not planned by partners. So इसको that is not allowed. Are you getting the point? What I'm trying to specify? So death is a natural phenomenon. So there is a chance that a particular partner may expire not on 31st March or not on 1st April exactly. The partner may expire at any point of time whenever God calls him back. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर ऐसी बात रहेगी तो इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट उस पार्टनर के जो लीगल एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे वो लोग बोलेंगे कि गुडविल पिछले 3 साल का कैलकुलेट करना था, बट अपना हीरो कभी एक्सपायर हो गया. लेट अस से अपना हीरो एक्सपायर हो गया फरवरी में एक्सपायर हो गया. सो दिस ईयर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, assuming that he has died on 1st of February. इसका मतलब 10 महीना he has worked in this year. So in this year, if there is a higher profit, in this year there is a higher profit as compared to last year. पिछले 3 साल को देखने का. So पिछला साल जो था फरवरी में अपना हीरो एक्सपायर हो गया, उसके पहले के 10 महीने का जो साल था तभी हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि हमने नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया. और वो नया टेक्नोलॉजी लाने का कारण क्या था? जो एक्सपायर्ड पार्टनर है वो इसका कारण था. उसके पहले के 2-3 साल
We were working with old technology, so the profits were down. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? So it is obvious that the legal executives will try to claim that अगर goodwill calculate करना ही है, so in that case goodwill should be extra profit earning capacity of the business as compared to competitors, because the technology has changed. It is obvious that in future the remaining partners who are going to continue with the partnership are going to enjoy higher profits as compared to in the past. Now this is a unfortunate situation that the partner who was catalyst in bringing the new technology in the firm could not live long and he has expired. But his vision, his efforts, his decisions are going to have the remaining partners for the purpose of enjoying higher profits as compared to competitors in the future. तो इसके पहले भी हम लोग कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, और तेरे ध्यान है ना मेरे साथ? यू आर नॉट विद योर फोन, आई एम अज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. मुझे फंसाओगे तो अपने आप को फंसाओ, बाकी कुछ नहीं. सो वेयर आई वाज, पार्टनर. हाँ, तो इसके पहले भी हम लोग अपना पार्टनरशिप में कंपटीटर के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिट कमाते थे, लेकिन तभी ओल्ड टेक्नोलॉजी था, और अभी हमने नया टेक्नोलॉजी लाने की वजह से हमको तो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिल गया है. तो इट इज ऑब्वियस दैट वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज कंपेयर टू आवर कंपटीटर्स. अपने कंपटीटर्स को शायद 1 लाख प्रॉफिट होता था, हमको 1.5 लाख होता था, लेकिन इसके आगे अपने कंपटीटर्स को 1 लाख होता रहेगा, हमको शायद 2 लाख होना चालू हो जाएगा. दैट मीन्स एक्चुअली स्पीकिंग द रिजल्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ द पार्टनर इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू द रिमेनिंग पार्टनर्स आफ्टरवर्ड्स. तो दे वुड लाइक टू स्पेसिफाई दैट गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए फरवरी तक का, मतलब 31 जनवरी तक का प्रॉफिट को कंसीडर करो, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट इसके से बढ़ेगा. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? वेयरएज रिटायर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो बोलेंगे नहीं, बिकॉज अप टू लास्ट ईयर दुनिया 1 लाख, हम लोग 1.5 लाख, मतलब हमारा गुडविल कितना सुपर प्रॉफिट कितना आता था? 50,000 आता था. और अभी इस साल में क्या हो गया? दुनिया 1 लाख, हम लोग 2 लाख, मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख हो गया. ऑटोमेटिकली एवरेज प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के लिए, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए गुडविल का वैल्यू बढ़ गया है. बट ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा इफ यू विल कंसीडर वैल्यू ऑफ गुडविल अप टू 31 मार्च. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो जनरली व्हेन इट कम्स टू डेथ ऑफ अ पार्टनर and it comes to valuation of goodwill, then generally you will find that goodwill is not valued only up to the last completed year, but goodwill may be up to the date of death of the partner. So death of the partner happened on 1st of February, then goodwill valuation should be up to 31st of January. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? अगर वैसी बात करनी है तो in that case they have specified 3 years. वर्डिंग कैसा था? 3 years purchase of average profits of the 3 years up to the date of death. मिळालं कसं काय ना? हे 3 years परचेसचं सोपं आहे, त्यानंतर आपल्याला करतायत की ॲव्हरेज प्रॉफिट काढला काय, सुपर प्रॉफिट काढला काय, त्याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, काम संपलं. सो दॅट दोज 3 years आय एम नॉट व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन, बट आय एम मोर इंटरेस्टेड इन ॲव्हरेज प्रॉफिट्स ऑफ व्हॉट? ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ. सो दीज 2 sentences आर व्हेरी इंपॉर्टंट. प्रॉफिट्स आर अज्युम्ड टू बी अर्न्ड इव्हनली थ्रू आउट द इयर आणि अप टू द डेट ऑफ डेथ. मिळालं कसं काय ना? इट इज नॉट प्रॉफिट्स ऑफ द 3 years एंडिंग ऑन 31st of March प्रायर टू द डेट ऑफ डेथ, असं काय म्हटलेलं नाही. प्रॉफिट्स of the 3 years ending on 31st of March up to the before the date of death, असं काहीतरी म्हटलेलं नाही, और prior to the date of death असं काहीतरी म्हटलेलं नाही. त्यांनी म्हटलं अप टू द डेट ऑफ डेथ पर्यंत या. म्हणजे जर का आपला हिरो 1 फेब्रुवारीला एक्सपायर झाला असेल तर 31 जानेवारी पर्यंतचे कन्सिडर करा. जर का आपला हिरो 31 ऑक्टोबरला एक्सपायर झाला असेल तर 31 ऑक्टोबर पर्यंतचे कन्सिडर करा. पण मग ते 31 ऑक्टोबरला जे 3 वर्ष संपली ती बघायची. then these years cannot start on 1st March. If an year is ending on 31st October, it cannot start on 1st April or 1st March as the case may be, or 1st Jan. It will have to start on 1st of November. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? If the year starts on, or sorry, if the year ends on, yeah, if the year is ending on, let us say 31st of January, that means it must have started on last year 1st of December. समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अपने को अभी ऐसा जाना पड़ेगा. That's why अगर उन्होंने 3 साल का बात करना था तो they should have given us profits of 3 years, but they have given us profits of 4 years, 2013, 14, 15, 16. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रीजन क्या है कि 2016 को अपना हीरो कभी एक्सपायर हो गया? They have told that he has expired on 30th of June 2016. 30 जून 2016 एक्सपायर झालेला आहे, याचा अर्थ ते वर्ष किती चालू झालं असणार आहे? 1st जुलै 2015. काय रे, समजतं मी काय म्हणतो? आपल्याला 3 वर्ष मागे जायचं. आपला हिरो कधी एक्सपायर झाला? 30 जून 2016 ला एक्सपायर झाला.
30 जून 2016 एक्सपायर झाला असेल तर त्याच्या मागे 1 वर्ष म्हणजे 1 जुलै 2015 टू 30 जून 2016. त्याच्या मागे अजून 1 वर्ष 1 जुलै 2014 अप टू 30 जून 2015. त्याच्या मागे 1 वर्ष 1 जुलै 2013 अप टू 30 जून 2014. अशी 3 वर्ष आहे. मग जर का तुम्हाला तसं जायचं असेल तर तुम्हाला 1 जुलै पासून ते 30 जून पर्यंत प्रॉफिट माहिती पाहिजे. मग जर त्याने तुला प्रॉफिट कुठला देऊन ठेवला 2013 दिला फक्त 2013 म्हटलं. Have they used the word 2013-14? They used the word 2013. That means the information given in the problem is representing the financial year or it is representing the calendar year. कारण calendar आपण असं म्हणतो 2012, 2013, 2014. So this information is of calendar year. So this information is of 12 months starting from 1st Jan up to 31st December 2012 or 1st Jan up to 31st December 2013 or 14, 15 as the case may be. फिर हम बोल सकते हैं वो सेंटेंस भी मदद करने को आएगा that profits arose evenly throughout the year. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इवनली थ्रू आउट ईयर का मतलब क्या है? हर एक महीने में सेम टू सेम प्रॉफिट. एक महीने में ज्यादा प्रॉफिट, एक महीने में कम प्रॉफिट, ऐसा नहीं हुआ. दिवाळीमध्ये मोठा सेल, क्रिसमस मध्ये काय मोठा सेल, किंवा काय 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी मोठा सेल, असं करून त्या महिन्यामध्ये जास्त प्रॉफिट आणि बाकी महिन्यामध्ये आपलं जनरल असं नाही झालं त्यांचं. एव्हरी मंथ दे आर एन्जॉयिंग कॉन्स्टंट प्रॉफिट. दॅट्स व्हॉट दे आर ट्राइंग टू से. समझता मैं कैसे बोल रहा हूँ? थिंक अबाउट ऑल बिजनेसेस अराउंड यू. Look at ambitions. Look at Morek. Here you will find that our profits don't actually arise in an even manner. They arise in uneven manner. कौस्तुभ सरांना दर महिन्याला फी मिळत असते का? फी कधी मिळणार? ऍडमिशनच्या वेळेला. ऍडमिशनच्या वेळेला तुम्ही फी भरता. कधी भरता? भरपूर जण इन्स्टॉलमेंटच्या ऐवजी लमसम भरून टाकतात. मग फी एकदा जमून गेली. काय काय जण इन्स्टॉलमेंट असतात, 3 इन्स्टॉलमेंट, 5 इन्स्टॉलमेंट वगैरे. सो 5 महिन्यात पैसे भरून टाकतात. 12वीची फी 12वीच्या आधीच्या डिसेंबर किंवा जानेवारीमध्ये सरांनी ऍडमिशन चालू केली असते. त्यानंतर 12वीच्या एप्रिलमध्ये क्लास चालू होतो, त्याच्यात तुमची फी भरून झालेली असते आणि मग सर हळूहळू दर महिन्याला खर्च करतात. समजतं मी काय म्हणतो? थिंक अबाउट चितळे, पुण्याचा मोठा ब्रँड. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? तर दर महिन्याला सेम टू सेम सेल्स होत असतील का वेगळ्या महिन्यात वेगवेगळे सेल्स होत असतील? आता ह्या महिन्यात भरपूर सेल्स असणार 100%. का बरं? दॅट मीन्स उनका प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ दिवाळी इज गोइंग टू बी हायर ॲज कम्पेअर्ड टू अदर मंथ्स. समजतं मी काय म्हणतो? आर यू गेटिंग द पॉईंट? पावसाळ्याचे दिवस असतील तेव्हा जास्त काही प्रॉफिट होणार नाही त्यांना, कारण तेव्हा काही बाकी कुठले जास्त सण समारंभ नसतात आणि लोक म्हणतात की बाहेरचं दूध बी बाबा गडबड नको, कुठे काही खराब जर असेल खराब नको, प्रॉब्लेम नको व्हायला, तब्येत नको खराब व्हायला. सो जनरली यू विल फाइंड दॅट इन रेनी सीजन देयर बिझनेस मे बी हॅव्हिंग अ लल पीरियड, बट इन फेस्टिव सीजन्स देयर बिजनेस इज गोइंग टू हैव अ वेरी गुड पीरियड. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेनी सीजन में दुकान बंद करते हैं, तभी भी सेल्स होता है. किसी का बर्थडे रहता है, किसी का शादी का एनिवर्सरी रहता है, किसी का कुछ वास्तु प्रवेश रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, तो कुछ चटर पटर खाने का मन करता है, चलो लेके आएंगे. दैट इज ऑलवेज देयर. बट हाईएस्ट सेल्स आर गोइंग टू हैपनिंग इन दिवाली और सम अदर फेस्टिवल्स. समझते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गणपति के टाइम, दिवाली के टाइम, नवरात्रि के टाइम, तभी उनका ज्यादा सेल्स होने वाला है. तो उस महीने में ज्यादा प्रॉफिट्स होगा, बाकी महीने में कम प्रॉफिट्स होगा. तो जनरली ऑल बिजनेसेस आर गोइंग टू हैव अनइवन प्रॉफिट्स. अनइवन प्रॉफिट्स रहेगा तो इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एटलीस्ट इन द एग्जामिनेशन. रियल लाइफ में तो ठीक है, अपने पास पूरा डेटा रहता है सामने कि कौन से महीने में कितना सेल्स, कौन से महीने कितना खर्चा, कैसे कैलकुलेट किया जाए. एंड पार्टनर्स में एग्री अगेन कि अब हम लोग इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? फॉर एग्जामिनेशन लाइफ दे हैव टोल्ड दैट इट इज इवन थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब अगर 67,200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 2013 में, 67,200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 2013 में. 2013 मध्ये किती महिने होते? कुठल्या वर्षी 12 महिने असतात. सो 67,200 अपॉन 12, 5,000 is the profit which they must have earned every year. Sorry, every month. सगळ्यांना कळतं का मी काय म्हटलं ते? Is the profit which they must have earned every month. Is it clear to all of you? Any difficulty? Second year कुठला तुमचा? 75,600 म्हटलं तुम्ही प्रॉफिट. So 75,600 divided by 12. 6,300 नंतर किती असणार आहे? 6,000 नंतर किती असणार आहे? 62,400 से डिवाइड बाय 12. 6,000 हे 6,000 नसेल, 72 म्हणजे 6,000 असेल ना. सर उसका क्या बात बोलो? तो आगे क्यों जा रहे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. आपने को पूरा प्रॉब्लम समझ के रहने का. अलग अलग टाइप के वैरायटी के प्रॉब्लम आएंगे, तो हर एक प्रॉब्लम में अपने को क्या क्या चीजें सोचने का पहले मालूम रहना चाहिए. बाद में इसमें हम लोग शॉर्टकट क्या निकालेंगे बाद में देखेंगे. सो द लॉजिक इज एग्जाम में बराबर से वो क्या करेंगे? 30 जून की जगह पे 31 अक्टूबर कर देंगे, 31 दिसंबर कर देंगे, 31 जनवरी कर देंगे. तो समझ में तो आना चाहिए कि ऐसे उसने करते करके. अभी ठीक है, बराबर 30 जून किया हुआ है तो हाफ इधर लिया हाफ उधर लिया हुआ करके, बट वो क्यों सोचा वो मालूम रहना चाहिए.
सो लेट मी डिस्कस एवरीथिंग कंप्लीटली. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कि अभी सर ये मालूम तो पड़ गया पर मंथ कितना है, उसका क्या फायदा होगा. फिर जो अपने को पिछले 3 साल का देखने, 3 साल कहाँ तक चालू खत्म होने वाले हैं, 30 जून 2016. मेरे तक कैसे करना, 30 जून 2016 मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि लास्ट ईयर में उसका प्रॉफिट कितना रहेगा फ्रॉम 1 Jan 2016 टू 30 जून 2016 इट विल बी 5000. अभी तूने कैलकुलेट किया था लास्ट में 5200 लास्ट ईयर का, मुझे मालूम नहीं कितना करते. देखो 5200 लास्ट का 6 मंथ का 5200 रहेगा, बट अपने को पूरा साल देखने का पूरा. तो इट इज एंडिंग ऑन 30 जून 2016 मतलब मस्ट हैव स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2015. तो 1 जुलाई 15 से लेकर 31 दिसंबर 15 तक का कितना प्रॉफिट रहेगा अपने को चेक करना है. उसके लिए अपने को पिछला साल देखना पड़ेगा 72,000 अपॉन 12 मतलब 6,000. तो द ईयर ऑफ 1 जुलाई 2015 अप टू 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर नहीं सॉरी 30 जून 2016 मस्ट बी इक्वल टू 6,000 इंटू 6 प्लस 5,200 इंटू 6. कळतंय मी काय म्हटलं ते, 6,000 इंटू 6 प्लस 5,200 इंटू 6. देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट. उसके पीछे का साल अपने को 3 साल देखने का, अभी 1 साल ही हो गया. उसके पीछे का साल, उसके पीछे का 1 साल देखना पड़ेगा. 30 जून 2016 को जो खत्म हुआ वो तीसरा साल है मेरी हीरोइन. उन्होंने 3 साल का एवरेज निकालने को बोला हुआ है. इधर बोला है, इधर ऊपर बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 years अप टू द डेथ ऑफ पार्टनर. मेरा क्या आपको सोचूं, तो इन दैट केस मुझे बोलना पड़ेगा फिर 30 जून 16 तक जो साल खत्म हो गया वो खत्म हो गया है. उसके पीछे का साल मतलब 30 जून 15 को जो खत्म हो गया रहेगा वो. उसके पीछे का 1 साल मतलब जो 30 जून 2014 को खत्म हो गया रहेगा वो. वहां तक जाना क्या. तो जो हमने अभी खेला कि 6 मंथ्स अगले वाले का, 6 मंथ्स पिछले वाले का, ऐसा करते करते हम लोग आगे जा सकते. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ. एंड देन वी कैन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ. पण तो जो प्रॉफिट आहे त्यांनी स्वतः सांगितलं त्याच्यामध्ये फॉलोइंग वेअर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अर्लियर इयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड. म्हणजे ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल वजा करायचं बाकी आहे. समजतं का सगळ्यांना. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल दरवर्षी वजा करायचं का, मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. आठवत असेल तर FMPच्या वेळेला तुम्हाला शिकवलं होतं की आपण कसं करतो. मागच्या गोष्टींमध्ये काय राहून गेला असेल तर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करायचे. आठवतं का सगळ्यांना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हे ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट केल्यानंतर करायचं असतं का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हे ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट करायच्या आधी करायचं असतं. आधी करायचं असतं. रेम्युनरेशन टू पार्टनर आणि इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल हे त्या वर्षीचं होतं, म्हणजे तुम्ही ते टोटलिंग करायच्या आधी वजा करायला पाहिजे. पण मला सांगा इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची अमाऊंट त्यांनी वेगवेगळी सांगितलेली आहे का इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची अमाऊंट त्यांनी कॉन्स्टंट सांगितलेली आहे. कुठे दिली इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलची अमाऊंट 8% दॅट इज ओके, पण 8% ऑफ व्हॉट हॅव दे टोल्ड दॅट पर्टिक्युलर थिंग. कारण 8% इज अ रेट. 8% is a rate. Merely because it is 8% doesn't mean the amount is constant. The rate is constant, but rate is calculated on what? If that amount itself is changing, in that case the amount of interest also will change. अगर 8% ऑन कॅपिटल कॅल्क्युलेट करना है, कॅपिटलचे 8% कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, 8% कॉन्स्टंट ठेवले असतील, पण कॅपिटल जर का चेंज झालं तर ऑटोमॅटिकली 8% चेंज होतील. कसं काय करते. तुम्हाला एफडीवरती इंटरेस्ट मिळतो 10%, मला पण इंटरेस्ट मिळतो 10%. मग तुम्हाला इंटरेस्ट आणि मला इंटरेस्ट सेम मिळाला का, नाही मिळाला. तुमची एफडी जर का 10,000ची, माझी एफडी जर का 1 लाखाची आहे, तर तुम्हाला पण 10%, मला पण 10% आहेत रे. पण तुम्हाला 10,000 ते 10% मिळतील, मला 1 लाखाचे 10% मिळतील. इंटरेस्ट अमाउंट वेगळी होणार ना. त्यामुळे डोंट से दॅट इंटरेस्ट इज कॉन्स्टंट बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉन्स्टंट. इंटरेस्टचा अमाऊंट कॉन्स्टंट होण्याचं कारण काय असलं पाहिजे, मग रेट ऑफ इंटरेस्ट पण कॉन्स्टंट आहे आणि कॅपिटल एम्प्लॉयड पण कॉन्स्टंट असेल तर इंटरेस्टची अमाऊंट कॉन्स्टंट होईल. म्हणजे तुमची पण एफडी 1 लाखाची, माझी पण एफडी 1 लाखाची, तुम्हाला पण 10%, मला पण 10%, मग दोघांचा इंटरेस्ट सेम येऊ शकतो. कळते मी काय म्हणतो ते. तसंच इकडे होणार आहे. जर का कॅपिटल मागच्या 3 वर्षाचं कॅपिटल जर का त्यांनी कॉन्स्टंट ठेवला असेल आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट पण कॉन्स्टंट ठेवला असेल तर आपण म्हणू शकतो की इंटरेस्टची अमाऊंट कॉन्स्टंट आहे. सगळ्यांना कळते का मी काय म्हटलं ते. इज इट क्लिअर. नाउ टेल मी कॅपिटल कॉन्स्टंट आहे का कॅपिटल वेगवेगळं आहे की कुठे दिलंय कॅपिटल तुम्हाला. 1,56,000 सांगितलेलं आहे. मिळालं का सगळ्यांना. सो कॅपिटलची अमाऊंट इज 1,56,000 कॉन्स्टंट गिवन टू ऑल ऑफ अस. दॅट मीन्स प्रॉब्ली दे मस्ट बी फॉलोइंग फिक्स कॅपिटल मेथड. आठवते का फिक्स कॅपिटल मेथड नावाची गोष्ट होती. देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ मेंटेनन्स ऑफ कॅपिटल. वन इज फिक्स कॅपिटल, वन इज फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल. ही कुठली मेथड आहे. फिक्स कॅपिटल मेथड आहे. फिक्स कॅपिटल मेथड मध्ये त्यांनी 1,56,000 8% सांगितले. म्हणजे पहिल्या वर्षीच्या प्रॉफिट मधनं 8% ऑफ 1,56,000 वजा करायचे आहे. दुसऱ्या वर्षीच्या प्रॉफिट मधनं पण 1,56,000 8% वजा करायचे. तिसऱ्या वर्षीच्या प्रॉफिट मधनं पण 1,56,000 8% वजा करायचे. 3 वर्षाच्या प्रॉफिट मधनं 1,56,000 8% वजा केले. म्हणजे एक्सक्लुसिव्ह दरवर्षी सेमच अमाऊंट वजा करायची आहे. मग मी टोटलिंग करून ऍव्हरेज करून जो प्रॉफिट येतो त्यातनं जरी ते वजा केलं दुसरं चालू शकतं. प्रत्येक वर्षी वजा करायची गरज नाही.
समझ सकते क्या म्हणतो ते? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई एम रिपीटिंग अगेन. मैथ्स का रूल क्या बोलता है कि इफ देयर आर मल्टीपल डिफरेंट पॉइंट्स and each of the point is going to be multiplied by same function or same amount, in that case you can take the total first or reduction first and then you can go for multiplication once. समझते मैं क्या म्हणतो ते? सेम लॉजिक इज टू बी कंसिडर. हर जगह पे 8 टक्का 8 टक्का 8 टक्का ऑफ 1,56 1,56 1,56 है. हर जगह पे 1,56 का 8 टक्का मतलब कितना रे? 12,000. हर साल वो माइनस करना ही है. हर साल 12,400 माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का टोटलिंग करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करना है. मतलब अल्टीमेटली 12,500. 12,000 क्या तुम्हारा? 3 है. 12,480 को एक बार माइनस किया तो भी चलेगा. 3 बार माइनस करके टोटलिंग करने का एवरेज निकालने के बजाय एक बार माइनस किया तो भी चलेगा. इट इज वन एंड से. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट द आइडिया? ओके, नेक्स्ट पार्ट. और उन्होंने क्या बोल करके इट वाज एग्रीड दैट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फेयर रेम्युनरेशन फॉर द वर्क डन बाय ईच पार्टनर वुड बी रुपीज 15,000 पर एनम. मैं 15,000 पण वजा करायचे आणि त्यांनी असं सांगितलंय का की एका वर्षी 15,000, एका वर्षी 16,000, एका वर्षी 17,000. याचा अर्थ काय कन्सिडर करणार आपण? हे पण कॉन्स्टंटच आहे. त्यामुळे खरं तर नीट आहे का मी काय सांगतो? खरं तर ही इंटरेस्ट अँड कॅपिटलची ऍडजस्टमेंट आहे, ही रेम्युनरेशन टू पार्टनरची ऍडजस्टमेंट आहे, ती त्या वर्षी करायला पाहिजे होती. म्हणजे ही टोटलिंग करायच्या आधी, ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट करायच्या आधी प्रत्येक वर्षामध्ये वजा करायला पाहिजे होती. पण कारण की ह्या इंटरेस्टची अमाऊंट आणि रेम्युनरेशन टू पार्टनरची अमाऊंट कॉन्स्टंट आहे, म्हणून ती प्रत्येक वर्षातनं वजा करून मग टोटलिंग करून मग ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट केला काय, किंवा वजा न करता डायरेक्टली दिलेल्या प्रॉफिटचं टोटलिंग, दिलेल्या प्रॉफिटचं ऍव्हरेज आणि त्याच्यामध्ये मग एकदाच फक्त वजा केलं तरी चालेल का? आन्सर सेमच येणार. सगळ्यांना कळतं का मी काय म्हटलं ते? दिस इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन. And the rules of our calculation of goodwill tell us that rectification should happen in the respective year in which mistake happened. समजते मी काय म्हणतो ते? Rectification cannot be done after calculating average. Rectification should be done in the year in which the mistake took place or mistake happened or mistake occurred. So in reality, we should consider the past. However, since the same mistake happened 3 years, exactly of the same amount. समजते मी काय म्हणतो ते? So instead of considering mistake in every year, rectifying in every year, and thereafter taking total, thereafter taking average, you can specify ठीक है मिस्टेक को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, जो दिया है उसी का टोटलिंग करते हैं, जो दिया है उसी का एवरेज निकलते हैं, फिर एवरेज में से एक ही बार एडजस्ट करते हैं. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? सेकंड लास्ट बेंच, रेड शर्ट, नक्की कळलं का बाळा का चेहऱ्यावरती क्वेश्चन मार्क आहे? श्योर. ओके. So we are going to compute the value of goodwill and show the adjustment. सबसे पहले क्या? W is a deceased partner, C and D are continuing partners. They will gain in PSR. The profits of the past years are expressed in calendar year terms. Calendar year बाबा लोग calendar year हे दिले ना 13, 14, 15, 16. Goodwill valuation is based on the profit up to the date of death, and W has died up to on 30th of June. Therefore, profits of last 3 years will be calculated by using part profit of 2 different calendar years. सगळ्यांना कळतंय का? ऑब्झर्वेशन पटापट लिहून घ्या पटकन. एक्झाम मध्ये ऑब्झर्वेशन लिहायची गरज नाही. एक्झाम मध्ये ऑब्झर्वेशन लिहायची गरज नाही. दिस इज स्लाइड नंबर 55. हो. Slide number 55. Slide 55.
Shall I go ahead? Come on, be quick. Question leave बसू नका please. Shall I go ahead? Okay. Now let us consider 2013, 14, 15 और 16. ऐसा अपना 4 साल है. मेरा क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. उसमें 1 Jan to 30 June. डेट ऑफ डेथ क्या है तुम्हारा? 30 जून 2016. एंड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर. ऐसा करके अपने को कंसिडर करना पड़ेगा. हर एक साल जो है 2013, 14, 15 और 16 अपने को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट कौन सा रहेगा? 1 Jan to 30 June 13 टू 1 जुलाई 31 टू 31 दिसंबर 2013. बाद में 1 Jan 2014 टू 30 जून 2014 और बाद में 1 जुलाई टू 31 दिसंबर. मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. फिर उसमें से जो लास्ट साल रहेगा ना, लास्ट ईयर 30 जून का 2016 वाला, वो अपने को कहां तक रोकना पड़ेगा? 30 जून 2016 तक ही रोकना पड़ेगा. क्लियर? तो ये जो 60 to 400 है सारा का सारा लेने का नहीं अपने को. 60 to 400 का अपने को सिर्फ आधा लेना पड़ेगा. वैसे ही जो शुरुआत का 67 200 है वो भी अपने को पूरा लेने का नहीं, वो भी अपने को सिर्फ आधा लेना पड़ेगा. क्या समझ सकते कैसे बोल रहा हूँ? क्यों? बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट नॉट फ्रॉम 1 Jan, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई. सगळ्यांना कळतं का मी काय म्हणतो ते? फर्स्ट जुलाई 2013. क्लियर? सगळ्यांना कळलं का काय झालं ते? ओके. डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ कैलेंडर स्टार्टिंग. तो कुछ समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर इन दैट केस, इन दिस केस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ डेथ वुड हैव बीन इग्नोर्ड and profit of the 3 calendar years of 2013, 14 and 15 would have been used for the purpose of goodwill. 6 months bifurcation would not have been useful. अगर वो बोलते थे कि सिर्फ पिछले 3 साल का प्रॉफिट देखो, अप टू द डेट ऑफ डेथ मत देखो. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाला वर्किंग अपने को करने का कि नहीं करने का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अप टू द डेट ऑफ डेथ को इग्नोर किया हुआ है. इसके लिए मैं इसका रंग कौन सा रखा हुआ है? ऑरेंज कलर रखा हुआ है, लाल कलर रखा हुआ है. ये अपने को करने का नहीं है, डेंजर है. अपने को ये वाला करने का, नीचे वाला. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका रंग ग्रीन कलर है. क्या बोलते हैं? गुडविल इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे क्या कंसिडर करूंगा? ये जो 67 200 है उसके 2 टुकड़े कर दिए. ऊपर वाले 6 मंथ्स के 33 600, नीचे वाले 6 मंथ्स के 33 600. ऊपर वाले 33 600 को इग्नोर कर दिया. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि कैलेंडर ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम विच डेट? 1 जुलाई 2013 से चालू होगा अपने कैलकुलेशन के लिए. फिर 2014 का 37 800 होगा, 37 800 होगा. दोनों यूज करना है, नो प्रॉब्लम. बाद में 2015 का 72,000 का 2 टुकड़ा हो गया, 36,000 दोनों यूज करना है, नो प्रॉब्लम. और लास्टली 2016 का 2 टुकड़ा होगा, 31 200 31 200. उसमें से ऊपर वाला टुकड़ा यूज करने का है, नीचे वाला कंसिडर करने का नहीं है. सबको समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इन दिस केस द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ शुड बी कंसिडर्ड. देयरफॉर इंस्टेड ऑफ कैलेंडर ईयर द इयर्स विल बी एज फॉलोज. फ्रॉम 1 जुलाई 13 टू 30 जून 14. अमाउंट किती असणार? हे 33,000. एक मिनिट थांबा, तुम्हाला कर्सर दिसत नसेल ना माझं. हे 33,600 आणि हे 37,800. नंतर 37,800 प्लस 36,000, नंतर 36,000 प्लस 31,200. असे 12 महिने पूर्ण होत आहे. सगळ्यांना कळलं का काय चाललंय ते? ऑटोमेटिकली अपना प्रॉफिट कितना है? 71,400, 73,800 और 67,200. ये प्रॉफिट हमने रिकैलकुलेट किया. फिर इसका हम लोग टोटलिंग करेंगे. फिर टोटलिंग करके एवरेज निकालेंगे. एवरेज निकालने के बाद में उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे. फिर जो बचेगा वो रहेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेम्यूनरेशन. फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाय 3 इयर्स फिर से वर्क कर देंगे. क्यों? बिकॉज दे हैव टोल्ड 3 इयर्स परचेस. सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऊपर वाला वर्किंग मत करो, सिर्फ नीचे वाला वर्किंग करो.
Come on, be quick. Don't waste time. Shall I go ahead? तो ये तो क्या मिल गया अपने को, सिर्फ प्रॉफिट का फिगर मिल गया। अभी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के फिगर का टोटलिंग, टोटलिंग के बाद एवरेज, एवरेज के बाद इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन कैपिटल के बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर, वो सब होने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स रहेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करने का है। फिर गुडविल मिल जाएगा, फिर उस गुडविल में से अपने को एक्सपायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करने का है, और वो बाकी दोनों पार्टनर को गेन रेस में ट्रांसफर करना है। उन्होंने बोला कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट मींस इट विल बी द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम मुझे बता अभी गुडविल कौन किसको देगा, गुडविल का पेमेंट किसने किसको देना चाहिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने डिसीज पार्टनर को देना चाहिए, फिर डिसीज पार्टनर की लीगल हेयर्स को देना चाहिए। इसका मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर गोइंग टू गिव नॉट इन कैश बट बाय एडजस्टिंग देयर कैपिटल। तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कि उनका कैपिटल कम हो जाएगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट को कम करने का, कैपिटल मतलब जनरली क्या रहता है लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब जनरली क्या रहता है क्रेडिट, क्रेडिट को अपने को कम करने का मतलब करना पड़ेगा डेबिट। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एक्सपायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सबको समझा क्या? चलो फटाफट वर्किंग करने का अपने को अभी। प्रॉफिट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसमें 1 जुलाई 13 तो अपना जो 71,400, 73,800, 67,200 है वो सब लिख लिया यहाँ पे। मैंने पिछले पेज में जो आंसर था यहाँ का, ये 3 वही यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे 71,400, 73,800 एंड 67,200। सर आपने इनर भी कॉलम में लिखा है और आउटर कॉलम में लिखा है, 2 बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने वहां से यहाँ पे कॉपी किया इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी कुछ है नहीं। सबको समझा क्या? उसके बाद में कौन आएगा, टोटल अप टू द डेट ऑफ डेथ और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एवरेज इज इक्वल टू 3। सो एवरेज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ आ गया 70,800। उसमें से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 15,000 फॉर ईच पार्टनर बोला था, मेरा करें
वर्क डन बाई ईच पार्टनर वुड बी 15,000 ईच मिला क्या? इसके लिए यहाँ पे लिया 15,000 इंटू 3 पार्टनर्स इज इक्वल टू 45,000 इंटरेस्ट इन कैपिटल 1,56,000 इंटू 8%। वो एक ही बार किया हुआ, 3 बार नहीं किया है सर। हर एक साल का इंटरेस्ट है ना, दैट इज ट्रू, बट हर एक साल में जितना इंटरेस्ट कॉमन है, इसका मतलब अभी हम लोग एवरेज के बाद में कर रहे हैं ना, तो इन दैट केस हमने एक ही बार इंटरेस्ट दिया तो भी चलेगा। सुनो ना रे प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता। देयर इज अ चांस दैट आप कोई दूसरा बुक देखोगे तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा और रेम्यूनरेशन को भी 3 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, मतलब 15,000 इंटू 3 क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? और इंटरेस्ट को बोला रहेगा 1,56,000 इंटू 8% इंटू 3। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा और कब चलेगा? ये चलेगा कब? अगर तुम वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट एवरेज के पहले करते रहोगे, मतलब टोटल प्रॉफिट के बाद 2,12,400 के बाद करने वाले रहोगे ना कि इंटरेस्ट इन कैपिटल, फिर तुम बोल के 2,12,400 कौन है? पिछले 3 साल के प्रॉफिट का टोटल है और टोटल में से इंटरेस्ट को हटाने का है, तो टोटल इंटरेस्ट को हटाना पड़ेगा। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? 2,12,400 कौन है? तो 3 साल का टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से अगर रेम्यूनरेशन हटाने का रहेगा तो 3 साल का रेम्यूनरेशन हटाना पड़ेगा। अब हम लोग कहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं? टोटल के बाद एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि एवरेज के बाद एडजस्टमेंट कर रहे हैं? मतलब हमको जो मिल रहा है वो 77,800 है। 77,800 कौन है? एक साल का प्रॉफिट है। क्या समझ सकते क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें से एक साल का रेम्यूनरेशन हटेगा और एक साल का इंटरेस्ट हटेगा। अगर तुम उसको 2,12,400 के बाद में एडजस्ट करने का कोशिश करोगे, चलेगा, वो भी चल सकता है, लेकिन तभी याद रखना पड़ेगा इट शुड बी 3 इयर्स रेम्यूनरेशन एंड 3 इयर्स इंटरेस्ट। सो अलग अलग बुक देख के टेंशन लेने का नहीं सर, ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया। पहली बार ज्यादा बुक देखो मत, देखने का तो प्रॉब्लम देखने का, सोल्यूशन नहीं देखने का। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और अपने टेक्निक से सॉल्व करने का कोशिश कर। एंड यू मस्ट नो द स्टेप्स व्हाई दे आर डन लाइक दिस। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो स्टार्ट। बोला लास्ट 57।
डब्ल्यू आहे ना, आणि कोण एक्सपायर झालाय? डब्ल्यू. तो ऑलरेडी म्हणजे कोणी सी आणि डी आहे ना, सी डी आणि डब्ल्यू. Complete. Shall I go ahead? बेसिक समजलं का पार्टनरशिपचं काय आहे ते आता? इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल आठवतं का? इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सहा महिन्याचं, 5.5 महिन्याचं, 6.5 महिन्याचं, 4.5 महिन्याचं, 7.5 महिन्याचं. आणि ते आपण प्रॉडक्ट मेथड पण केलं, आठवतं का? पासबुक सारखं केलं होतं, मध्येच प्रॉफिट, मध्येच डिपॉझिट, मध्येच विड्रॉवल. परमनंट इंटरेस्ट कन्सिडर करायचा. Chal, I think we have completed all the writings now. Shall I stop, madam? Third bench. Chala. Now we'll go for just a little bit of introduction of admission of a partner. What do we mean by admission of a partner? Now, since you already studied the topic of admission of a partner in your 12th standard, and we have discussed a lot about goodwill adjustments, about ratio calculations, and about basics of partnership, I can directly jump into the part of steps to be followed for accounting for admission. Admission of a partner मध्ये पार्टनरशिप काय सांगतो की admission of a partner can take place only if all the existing partners are agreeing for the same. I repeat, if there are 5 partners at present in the partnership firm, and if 4 partners are agreeing that 6th partner can be admitted, but one partner is objecting that he cannot be admitted, then can you play Jastici majority? You can't play Jastici majority. It will have to be always a unanimous decision. If all the existing partners are agreeing, then only admission can take place. Partners cannot use the rule of majority for the purpose of deciding who should be admitted, who should not be admitted. It should be a unanimous decision. Reason is, in partnership, we are going to study in law again. In partnership, the true test of partnership is called as mutual agency. I repeat, true test of partnership is called as mutual agency. What is the meaning of agency? Agency means somebody is principal and somebody is agent. In case of LIC agency, you must have seen somebody working as LIC agent. Okay, so LIC is principal, and those agents who are selling the insurance policies, they are agents.
So here you will find that principal is constant and agents are constant. At no point of time, agent becomes principal and principal becomes agent. This is a normal situation. But in case of partnership, every partner at the same time is a principal, at the same time he is an agent. That is the most important principle of partnership. That is a true test of partnership. So in case of partnership, every partner is principal and every partner at the same time is agent. So one principle cannot override another principle. I repeat, one principle cannot override another principle. So it is necessary that all the principals should agree that चलेगा अपने को करके. मैं हमेशा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर सपोज अरेंज मैरिज रहेगा, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, हम लोग घर में जिसका शादी है उसको पूछते हैं लड़की अच्छी लगी क्या, लड़की को पूछते लड़का अच्छा लगा क्या, बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसके मम्मी डैडी, इसके मम्मी डैडी, फिर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, घर में कोई रहेगा रामू चाचा, माली चाचा, सबको पूछते बाबा बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा. उसके बाद में हाँ बोलते, क्योंकि नया आदमी घर पे आएगा तो बाद में किसी ना किसी उस पर झगड़ा हो सकता है. एंड यहाँ पे तो अपने को बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाने का. So if somebody feels that this partner is not going to be more useful for the purpose of increasing the profits of the partnership firm, then it is better not to go for admitting such partner. It will have to be a unanimous decision. फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के टाइम कौन सा पॉइंट्स आएगा. सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया था कि रेशियो चेंज हो जाएगा. पहले जितनी जगह पे 2 लोग बैठते थे, अभी वहां पे 3 लोग बैठेंगे, मतलब शायद हर एक को मिलने वाला जगह थोड़ा कम हो जाएगा. तो somebody will sacrifice and new partner will gain. Sacrifice करने के अलग अलग तरीके हैं. कौन से तरीके हो सकते हैं? That the old partners are sacrificing exactly in their old ratio, or old partners are sacrificing in equal ratio, or old partners are sacrificing in some agreed ratio. अलग तरीके से sacrifice हो सकता है. तो हमने को देखना पड़ेगा क्या करने का क्या नहीं करने का. सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर न्यू पार्टनर इज गेटिंग एडमिटेड तो हम बोलेंगे राजा, हमने जो गुडविल जनरेट किया हुआ उसका बेनिफिट तुझे मिलने वाला है. हमने जो गुडविल जनरेट किया हुआ है उसका बेनिफिट तुझे मिलने वाला है. तो डोंट फॉरगेट टू पे अस एटलीस्ट योर शेयर ऑफ गुडविल which you are going to enjoy from the partnership. तो गुडविल का एडजस्टमेंट, वैल्यूएशन कैसे करने का और शेयरिंग कैसे करने का वो भी हमने देखा. सी इंस्टीट्यूट ने कौन सा चीज अलाउ किया है, कौन सा चीज अलाउ किया हुआ नहीं है वो भी देख के हो गया. समझ तो बोल रहा हूँ. गुडविल अकाउंट को ओपन करने का, ओपन नहीं करने का वो भी देख के हो गया. फिर तीसरा पार्ट क्या आएगा, नया पार्टनर को बोलेंगे राजा आते आते गुडविल तो लेके आना और साथ में अपना कैपिटल भी लेके आना. इज इट नेसेसरी दैट ही मस्ट ब्रिंग इन कैपिटल? देयर इज अ चांस दैट ही मे ब्रिंग इन वेरी नॉमिनल अमाउंट ऑफ कैपिटल, but he may be agreeing to work extra. So he can become a working partner who is not bringing in lot of capital. तो कैपिटल लाना कंपलसरी नहीं है बट नेसेसरी है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. रहेगा तो थोड़ा अच्छा, हम बोलेंगे ठीक है कुछ नहीं तो नॉमिनल कैपिटल तो लेके आओ बजा, बाद में तो काम कर, लेकिन तेरा कुछ ना कुछ तो पैसे यहाँ पे अटका हुआ रहना चाहिए. अगर तू बोलता है कि सर आप मुझे गाड़ी चलाने को दो, गाड़ी का पैसा मेरा, चलाएगा तू और खड्डे में डालेगा तो गाड़ी मेरा डूबेगी, तो राजा तेरा भी पैसा रहना चाहिए उसके अंदर. अगर तेरा पैसा लगा हुआ रहेगा तो तू जरा संभाल के गाड़ी चलाएगा. किधर भी रेस कर रहा है, किधर भी खड्डे में लेके जा रहा है, ऐसा सब नहीं करेगा वरना सस्पेंशन खराब हो गया, गाड़ी को किधर डैश किया तो डेंट आ गया, सब गड़बड़ हो जाएगी. सो जनरली यू विल फाइंड दैट न्यू पार्टनर will be asked to bring in some amount of capital so that his money is invested in the business. गुडविल का एडजस्टमेंट देख लिया, चेंज इन पीएसआर का वर्किंग देख लिया, सैक्रिफाइस रेशियो कैसा होगा वो देख लिया हमने. कैपिटल लेके आने को बोलेंगे. कैपिटल का एंट्री एकदम सादा एंट्री रहेगा. कौन सा एंट्री रहेगा कैपिटल का? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल. Now the most important thing which we have not yet discussed is about revaluation. Now what is the meaning of revaluation and what is the purpose of revaluation? Can you tell me why is it necessary that revaluation should take place before admission of a partner? Anybody? Revaluation नहीं किया तो क्या होगा? There is no company, there is a firm. Okay. ठीक है. Any other purpose? और कल को हमको ऑफर है कि एक आपका कंपनी तो फिर उनमें झगड़ा हो सकता है कि मैं एक्चुअली तो मेरे को लेना है नहीं लेना है. उस वजह से तो पहले से मतलब तब तक जो कौन सी कंडीशन थी वो सब वैल्यू हो जाती है और नया चालू हो जाता है जो पार्टनर. You are touching the right points but you are not concluding the right conclusion. Okay. Your classes are currently एकदम तेव्हाची आपण हिस्टॉरिकल कॉस्ट रेकॉर्ड करत आहे आणि आता रिवाइल करते आताची कॉस्ट इज ड्रास्टिकली डिफरंट देन कॉस्ट इन द बुक्स. Then it should, with the new partner should take a proper objective approach to look at the work status. You again touch the right point but you concluded in a different way. बोलिए. The old profit and losses. हम रिवैल्यूएशन का बात करें. ओल्ड प्रॉफिट्स वर्सेस का क्या बात करें?
वो तो बाद में बात है यार, वो तो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिवैल्यूएशन। रिजर्व का बात क्यों कर रहे हैं? वो अलग एडजस्टमेंट। नोबडी कौशल सरांना मी सांगणार आहे, 12वीची पोरं आहेत माझी, ऍडमिशन पूर्ण करून आले, तुम्हाला कारण माहिती नाही, असं कसं करून झालं? विचार करून बघा, आज जर का आपली काय याचं नाव, शौनकने बरोबर सांगितलं की पार्टनरशिप मध्ये कुठे पण आपण प्रिन्सिपल कुठलं वापरतो अकाउंट्स मध्ये, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्सेप्ट. सो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज परचेज 20 years बैक. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट कॉस्ट विच वॉज ऑब्वियसली पेड 20 years बैक. टुडेज वैल्यू हैज गॉन अप. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो व्हाट विल हैपन, जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट अगर सपोज तभी परचेज किया था 10 लाख में, आज उसका कीमत 2 करोड़ रुपया हो गया, 1 करोड़ 90 लाख का एक्चुअली फायदा हो गया, लेकिन ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है बिकॉज वी आर नॉट सोल्ड द बिल्डिंग. इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट ओनली. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? अकाउंट्स क्या बोलता है? नेवर एंटिसिपेट योर इनकम्स एंड गेन्स, ऑलवेज एंटिसिपेट योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. तो 10 लाख पर रिकॉर्ड करना तो कंपलसरी है, तो हाथ ही नहीं लगा सकते हम लोग. देन कम्स नेक्स्ट पार्ट, हमने नए पार्टनर को एडमिट कर लिया आज 20 साल के बाद, बिल्डिंग परचेस करने के बाद 20 साल के बाद हमने नए पार्टनर को एडमिट किया हुआ है. और सपोज आज एडमिट करने के टाइम हमने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया, और सपोज कल अनफॉर्चुनेटली फॉर्म डिसॉल्व करने का डिसाइड हो गया, आज एडमिशन और कल झगड़ा, सुबह आने के टाइम एक दूसरे कैसे रिपोर्ट बोला चलो जान दे, बिजनेस डिसॉल्व कर देते. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? हो सकता है कभी, क्या मतलब किसका दिमाग सटक जाए कुछ पता नहीं. तो डिसॉल्व करने का बाद क्या, तो बिल्डिंग बेचना चालू किया, बिल्डिंग बेचना चालू किया तो 2 करोड़ रुपए मिल गया, तो प्रॉफिट हो गया. नया पार्टनर बोलेगा मुझे प्रॉफिट का शेयर चाहिए, आई एम द पार्टनर. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? पुराने पार्टनर बोलेंगे राजा तुझे क्यों शेयर देने, यू आर नॉट द पर्सन who was in existence when we purchased this particular building as a partner. You are not as a partner when we purchased this building. So इसका जो एप्रिसिएशन है वो सारा का सारा हमारा है, तेरा है ही नहीं. तूने गुडविल का बात किया है, यू हैव पेड अस गुडविल, बट दैट गुडविल इज फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. दिस इज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ एसेट सोल्ड. क्या रे, समझ सकते क्या बोलते? बिजनेस मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ये एसेट सोल्ड एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया था, और आज हमने मार्केट वैल्यू पे बेच दिया है, इसका अपने को प्रॉफिट हो रहा है. इस प्रॉफिट में तुझे कुछ हक मिलने का चांस ही नहीं. वो बोलेगा सर लेकिन आपने ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं था एडमिशन के टाइम, तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, काम खत्म हो गया. ये गुड्स बेच के प्रॉफिट हुआ, कैश बेच के प्रॉफिट हुआ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? वो उल्टा बोलेगा कि सर अगर सपोज ऐसा कुछ चीज है, आपका कोई पुराना व्हीकल है जिसका आप डेप्रेशन चार्ज करने को भूल गए, आपका कुछ पुराना फर्नीचर है जिसको आपने सिर्फ 5% डेप्रेशन चार्ज किया, लेकिन एक्चुअली हर साल 25% डेप्रेशन हो गया, उसका वैल्यू एक्चुअली 0 हो चुका है, लेकिन आपने 5% माइनस करके रखा हुआ है, और उसको बेच के आपको लॉस होगा, तो लॉस आप मेरे सिर पे डालोगे. अगर लॉस मेरे सिर पे डालोगे तो प्रॉफिट भी मुझे मिलना चाहिए. हम बोल के फिर जाने दो, तुझे लॉस भी नहीं देंगे और तुझे प्रॉफिट भी नहीं देंगे. तू आने के पहले जितना भी कुछ प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज है, वो सब हम लोग पहले रिकॉर्ड करके एसेट्स को टुडेज मार्केट वैल्यू पे लेके आएंगे. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर सपोज अपना एडमिशन हो गया है, तभी हमने रिवैल्यूएशन करके हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर टू हुम, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो का सैक्रिफाइस रेशियो, श्योर, क्लियर, ओके. ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करके हो चुका है. अभी पुराने पार्टनर का कैपिटल भी बढ़ चुका है, एसेट भी नए हो चुके हैं, और सुबह आने का मारामारी हो गया नेक्स्ट डे, और डिसोल्यूशन करने का डिसाइड भी किया. तो अभी 10 लाख का बिल्डिंग को 2 करोड़ में बेचेगा कि 2 करोड़ की बिल्डिंग को 2 करोड़ में बेचेगा? तो बिल्डिंग को बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ. यार समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ऑटोमेटिकली नए पार्टनर को प्रॉफिट कैसे मिलने का चांस ही नहीं आता. सिमिलरली वो पुराना व्हीकल, पुराना फर्नीचर जिसको भी फेंकना पड़ रहा है, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, उसका भी लॉस नए पार्टनर को जाने वाला नहीं. सो द लॉजिक ऑफ रिवैल्यूएशन इज एनी प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन द बुक वैल्यू एंड द रियल वैल्यू ऑफ द एसेट for the period for which new partner was not a partner should not be transferred to him, to ensure that he doesn't claim any profit or he doesn't suffer any loss on account of revaluation of the assets. It is better that before his admission, revaluation should take place. Now, there is one principle which is broken. If you go for revaluation of the assets, then by default, assets are brought to their today's market value, which is against the principle of historical cost. तो इसको एडजस्ट कैसे करने का वो भी अपने को सीए फाउंडेशन में सीखने का है. कल सीखा था. ओके,